Hello, dear kids. A very happy and very hearty good morning to all of you. I hope you all are good, happy, and safe in your homes, taking care of yourself, listening to your parents, paying attention to what your parents say, and following all the safety instructions. We are meeting each other through these online classes and these videos. So I do hope that you all are watching these videos, because I keep telling you that children, these videos are like your actual classroom. जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, वीडियोस में हम बिल्कुल उसी तरह से in the same way we explain everything. वीडियोस में हम बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, बिल्कुल हम वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं. सो आई होप दैट यू ऑल see the video and understand the lessons, understand the exercises which are explained. If you see the videos, you will understand everything very clearly. बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और जो भी डाउट है तो उसके लिए तो ऑनलाइन क्लासेस आर ऑफ कोर्स देयर. So I hope that you all see the videos. So should we start the class now? Are you all ready? So let us start this class. I welcome you all to the English class. This is our English book, Wordsworth English Reader, and we are doing lesson number 3 in this English book. The lesson number 3, which is Little Red Hen. We are doing lesson 3. Little Red Hen. Now we all know the story. We have done the wow words. We have done the word meanings. And we have started with the exercises. Exercises start किया है. First, we did comprehension. In comprehension, we did question answers. Then we did fill in the blanks. Then we did match the animals with the words which describe them. Now we have started with the grammar part. Okay? And in grammar, in my previous video, I explained about naming words. Okay? Naming words किसे कहते हैं? Naming words are the name of any person, any place, anything. किसी भी person, place, animal, tree, bird, all the things around us, everything has a name. हर चीज़ का एक नाम है. अगर नाम नहीं होगा तो how will you address something? What is your requirement? What do you want? आपके फ्रेंड्स का नाम, अपने पेरेंट्स को, जैसे आप मम्मी बुलाते हो, माँ बुलाते हो या मम्मा बुलाते हो, जो भी बुलाते हो, these are all naming words. मैक्सिमम बच्चे मम्मी पापा बोलते हैं, तो मम्मी पापा, these are all naming words. अगर ये naming words नहीं होंगे तो कैसे आप उनको बुलाओगे? How will you address them? So everything has a name. So the name of any person, any place, anything, any bird, any animal, जो monument होते हैं, ये सारे जो हैं, these are all naming words. Now, naming words, we always begin the names of person and places in capital letter. किसी भी person का और किसी भी place का जो नाम है, उससे हम हमेशा capital letter से start करते हैं. ठीक है? Only the name of any person or any place. मतलब जो common नहीं है, जो सिर्फ एक है. कोई भी person है, वो तो सिर्फ एक ही होगा ना. उस नाम के there may be many people of the same name. इस पूरे वर्ल्ड में उस नाम के बहुत सारे लोग होंगे, बट हर एक अलग अलग इंडिविजुअल है, हर एक अलग अलग पर्सन है. सो देयरफॉर व्हाटएवर इज जस्ट वन इन द वर्ल्ड. जैसे नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, प्लेस है जैसे
एक सिटी है वाराणसी है, so there is only one वाराणसी. कंट्री इंडिया, so there is only one country called इंडिया. बहुत सारे तो नहीं है. तो जो चीज़ें सिर्फ वन होती हैं उनके नाम हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं. देन वी डिड दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 26 yesterday. कल हमने ये वाली एक्सरसाइज की थी. नेम ऑफ एनी 4 of your friends, name of the places you know, name of any 4 birds or animals, or names of any 4 things you play with. Okay. Now today we will start with the exercise on page number 27. This exercise says rearrange the letters to get the names of different colors and then color them accordingly. ठीक है. So in this exercise रीअरेंज का मतलब है फिर से अरेंज करो. री मीन्स दोबारा. ठीक है. तो रीअरेंज मीन्स अरेंज इट अगेन, फिर से अरेंज करो. तो रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द names of different colors. The name of the colors are given in a jumble form. उनकी correct spelling नहीं दी है. You have to rearrange the letters to get the names of different colors and then color the balloons accordingly. For each balloon, अब बोर्ड पे तो मैं बलून्स को कलर नहीं कर सकती हूँ. आई कैन नॉट कलर देम. सो कलर तो आप अपने आप करोगे. हर एक बलून के लिए कलर्स आर गिवन एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज नॉट गिवन. यू हैव टू रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द करेक्ट स्पेलिंग. ओके. सो फर्स्ट इज PNIK. What color it could be? PNIK. Red, green, yellow, blue, maroon, pink, black, white. So what color it could be? It is PINK. 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 Then ORNGAE. Now think of the colors which the names of which start with O. अभी ऐसे कौन कौन से कलर्स हैं जिनके नाम जो है वो O से स्टार्ट होते हैं. रेड it starts with R. Green starts with G. Red, green, yellow, pink, blue, green, orange. Orange starts with O. So the spelling of, so this is the spelling of orange. ORANGE. The spelling is given in a jumbled form. So this is ORANGE. You can first guess the correct first letter. कौन कौन से कलर इस लेटर से स्टार्ट होते हैं. देन वी कैन थिंक. जैसे अभी ये पिंक है, पी से रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वाइट, ब्राउन, पिंक. सो ओनली कलर विच स्टार्ट्स विथ पी इज पिंक. तो वी कैन जस्ट चेक कि ये स्पेलिंग है कि नहीं है. सिमिलरली ऑरेंज इज द ओनली कलर विच स्टार्ट्स विथ ओ. तो हमने इसको चेक करके देखा. तो दिस इज द स्पेलिंग. देन थर्ड इज DRE. दिस इज सिंपल. ये तो सबको समझ में आ जाएगा. ऑफ कोर्स हियर द फर्स्ट लेटर इज D. D से तो कलर नहीं स्टार्ट होता, बट दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज RED. रेड. देन BULE. red, green, yellow, orange, blue. BLUE. So this is blue.
then G-E-R-E-N. This is Geren. Now what is the color? The color is green. G-R-E-E-N. So the name is G-R-E-E-N. Green. Okay. Then Y-L-E-O-L-W. So the color which starts with Y is yellow. Y-E-L-L-O-W. So this is Y-E-L-L yellow. Okay. So I have written the colors. You have to color the balloons according to the color given. जो आपने करेक्ट करके कलर लिखा उसके अकॉर्डिंग आपको ये बलून्स उसी कलर से कलर करने. जैसे दिस बलून इन पिंक कलर, दिस इन ऑरेंज कलर, दिस इन रेड कलर, दिस बलून विथ ब्लू कलर, दिस विथ येलो कलर and this is green color. Okay. So now let's see and let's move to the next exercise. Page number 28. And the next exercise is word building. Again, in each letter we do word building. Word building का मतलब है to make, to build new words. Okay. And when you build new words, जब आप नए words बनाते हो तो क्या होता है? You think of many new words. आप कुछ सोचते हो तो ऐसे सोचते सोचते you think of new words. आपको बहुत सारे नए words आते हैं. You learn many new words. So word building enriches your vocabulary. मतलब जो आपके पास जो words हैं, आप word building से you learn many more new words. आप बहुत सारे new words सीखते हो जिनके बारे में मे बी आपको you are not familiar with them or you are not at all aware with them, या जैसे सुना है उसके बारे में पता नहीं है. So okay, so we will start word building now. Word building. Word building मतलब अगेन जैसा बताया मैंने तो वर्ड्स बनाना. Now all living things are male or female. We call them by different names. All living things, that is human beings, animals and birds. They are all living things. Either they give, जैसे human beings तो हैं, then जो birds हैं, animals हैं, they also give birth to their young ones. उनके भी babies होते हैं. Either they lay eggs, या तो eggs होते हैं, या they give, जो mammals होते हैं, they give birth to their young ones. और अदरवाइज दे ले नेस्ट होते हैं. सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर इधर मेल और फीमेल. या तो वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं. एंड हर किसी का एक अलग अलग अपना नाम होता है. एवरीथिंग हैज अ नेम. सो टुडे वी विल डू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर. मतलब मेल अगर है तो उसका फीमेल नेम क्या है एंड अगर फीमेल है तो उसका मेल नेम क्या है. सो टुडे वी विल डू दिस थ्रू वर्ड बिल्डिंग. आज हम मेल एंड फीमेल जो लिविंग थिंग्स हैं उनके नाम करेंगे वर्ड बिल्डिंग में. ओके. ऑल लिविंग थिंग्स. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स इन द सेंस दैट दे ग्रो, वो भी बड़े होते हैं. दे ब्रीथ. They also require water, air, sunlight, but they do not give birth to their young ones as such. हम plants को हम plant करते हैं ना, we plant the saplings या उसके seeds लगाते हैं, we bury the seeds, फिर उसमें से नया plant निकलता है.
So the living things, that is human beings, animals और birds, they are सारे के सारे या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे. So let us see, and all of them have got different names. मेल का अलग नेम है एंड फीमेल का अलग नेम है. So let us see. In your book it is written, match the following to make pairs. I will not match them. I will write the correct name in front of each. जैसे अगर इधर मेल नेम है तो मैं उसके सामने उसका करेक्ट फीमेल नेम लिखूंगी. ओके. इफ इट इज मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, आई विल नॉट मैच, आई विल राइट इन पेयर्स ओनली. मतलब अगर इधर जो मेल नेम है तो उसका जो करेक्ट फीमेल नेम होगा वो मैं इधर लिखूंगी. I will write the correct female in front. I will not draw lines to match them. मैं lines draw नहीं करूंगी मैच करने के लिए. ठीक है. इसको कहते हैं masculine and feminine. Masculine मतलब मेल नाम जो होते हैं and feminine is जो फीमेल नाम होते हैं. ओके. So this is called gender. इसको कहते हैं gender. हिंदी में जिसको बोलते हैं लिंग. हिंदी में है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग. हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. और इंग्लिश में इसको कहते हैं जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग और फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग. जो मेल है दे आर ऑल मैस्कुलिन जेंडर और जो फीमेल है दे आर ऑल फेमिनिन जेंडर. ओके. Now, so this is known as gender. Match the following to make pairs. The first is boy. If it is a boy, अगर लड़का है तो आप क्या बोलते हो? boy. और लड़की है तो क्या बोलते हो? we say he is a boy, she is a girl. तो boy का opposite क्या होगा? boy is male और उसका female क्या होगा? girl. So boy, girl, king. King is राजा. King is राजा. It is male. तो किंग का फीमेल क्या होता है? राजा, रानी. जैसे बोलते हैं ना राजा रानी. तो किंग का फीमेल इज क्वीन. किंग एंड क्वीन. QUEEN. किंग, क्वीन. थर्ड इज हस्बैंड. हस्बैंड इज द मेल. उसका फीमेल क्या होता है? हस्बैंड का फीमेल इज वाइफ. हस्बैंड, वाइफ से बोलते हैं ना कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. मतलब पति पत्नी है. जब शादी होती है तो वो हस्बैंड एंड वाइफ हो जाते हैं. तो हस्बैंड का फीमेल इज WIFE, वाइफ. फोर्थ इज ब्रदर. ब्रदर मतलब भाई. तो हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई बहन. भाई बहन. इंग्लिश में इट इज ब्रदर, सिस्टर. ओके. सो ब्रदर का फीमेल इज SIS, सिस्टर. फादर. फादर का फादर मतलब पापा. पापा इज मेल और पापा का फिर फीमेल क्या होता है? आप क्या बोलते हो? मम्मी. मेरे पापा, मेरी मम्मी. तो पापा इज मेल एंड मम्मी इज फीमेल. तो फादर का फीमेल इज मदर. अंकल. अंकल मतलब जो जैसे पापा के फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं. इंग्लिश में एवरीवन इज अंकल. जैसे हिंदी में
मम्मी के भाई हैं तो मामा जी हैं, पापा के भाई हैं चाचा हैं, बड़े भाई हैं तो बड़े पापा बोलते हो आप, चाचा चाची मामा हैं, फूफा जी हैं। अलग अलग रिलेशन के अलग अलग नाम होते हैं हिंदी में. इन हिंदी वी हैव नेम्स फॉर ईच रिलेशन, बट इन इंग्लिश everyone is uncle, whether he is your mother's brother or father's brother. वो आपके चाहे पापा के भाई हो चाहे मामा के भाई हो, हर कोई क्या है, अंकल है. और वो आपकी चाची हो, मामी हो, मौसी हो, बुआ जी हो, कोई भी हो, इंग्लिश में सारे आंट हैं. या जिनको हमारे नेबर्स हैं तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, अंकल एंड आंटी. ठीक है, जिनको हम और क्या बोला हो गया, पापा के फ्रेंड्स हैं, मम्मी के फ्रेंड्स हैं, तो उनको हम अंकल आंटी बोलते हैं. तो अंकल का फीमेल होगा आंट, AUNT, अंकल आंट. प्रिंस, प्रिंसेस राजकुमार, हिंदी में जिसको राजकुमार कहते हैं, प्रिंसेस राजकुमार. तो इसका फीमेल क्या होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, राजकुमार, राजकुमारी. तो इन इंग्लिश इट इज प्रिंस एंड द फीमेल इज नोन एज प्रिंसेस, PRINCESS, प्रिंसेस. ठीक है, प्रिंस इज मैस्कुलिन एंड प्रिंसेस इज फेमिनिन. प्रिंस, प्रिंसेस. मैन, हिंदी में जिसको कहते हैं आदमी, देयर इज अ मैन, वहां एक आदमी है. तो आदमी का हिंदी में फेमिनिन क्या है, आदमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आदमी का जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या है हिंदी में, औरत. आदमी, औरत. इन इंग्लिश इट इज मैन एंड वुमन, WOMAN, मैन, वुमेन. ओके. नाइन्थ इज सर. जैसे सर बोलते हो ना स्कूल में, अगर मेल टीचर है तो यू कॉल देम सर, और अगर फीमेल टीचर्स है तो यू कॉल देम मैडम, है ना. तो इंग्लिश में अगर सर है तो हिंदी उसका फीमेल क्या होगा, मैडम. बोलते हो ना मैम, जैसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मैम, बट मैम इज द शॉर्ट फॉर्म. करेक्ट वर्ड इज मैडम. ओके, करेक्ट वर्ड इज मैडम. तो सर and madam. And son, देखो मैंने गलती किया, आप लोग ने देखा नहीं. 5 6 5, then 6 7 8 9 and then 10. Son. इन इंग्लिश सन, हिंदी में सन का मतलब क्या होता है, सन माने बेटा. हिंदी में क्या बोलते हैं, बेटा, बेटी. मेल इज बेटा, फीमेल इज बेटी. तो इन इंग्लिश इट इज सन एंड डॉटर. डॉटर. ठीक है. तो ये तो सारे जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं उनके रिलेशन है. बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, प्रिंस, प्रिंसेस, मैन, वुमन, सर, मैडम, सन, डॉटर. जैसे ग्रैंडफादर से फादर एंड मदर, तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनके भी मेल और फीमेल होते हैं. जैसे हम बोलते हैं लायन. लायन इज बब्बर शेर जो होता है, जिसके बाल होते हैं, मेन होती है लायन. ठीक है. तो लायन का जो फीमेल है उसको बोलते हैं लायनेस. LIONESS, लायनेस. मेल इज लायन. जैसे बोलते हैं ना शेर, शेरनी. बाघ, बाघिन. जो लायन होता है दैट इज बाघ, जो मेन वाला होता है लायन. शेर तो जो हमारा नेशनल एनिमल है, टाइगर.
ठीक है। जो लायन होता है जिसके मेन होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं बाघ और बाघिन। तो लायन एंड इन उसका फीमेल जो नेम है दैट इज लायनेस। जैसे सिमिलरली टाइगर, टाइगर, टाइगर इज शेर, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, शेर, शेरनी। तो इन इंग्लिश इट इज टाइगर एंड टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस, शेर, शेरनी। जिसे बोलते हो ना मोर, मोरनी। मोर इज पीकॉक एंड जो मोरनी होती है उसको फीमेल जो होता है उसको बोलते हैं पी हेन। जैसे कॉक एंड हेन होता है ना, मुर्गा इज कॉक, मुर्गी इज हेन, ठीक है ना। मुर्गा को क्या बोलते हैं, कॉक, और मुर्गी हेन होती है। तो सिमिलरली मोर इज पीकॉक एंड उसका जो फीमेल होता है जिसको मोरनी कहते हैं दैट इज पी हेन। ये तो दीज आर जस्ट द फ्यू, ऐसे बहुत सारे हैं। तो एवरी लिविंग थिंग इज ईदर मेल और फीमेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो या तो मेल होंगी या फीमेल होंगी, और हर किसी का अपना एक नाम होता है। Okay? Now this you have to learn. Now next is fun with the sound of I. We have done the sound of A. We have done the sound of E. Now we will do the sound of I. Listen to the sound of I as in sit, fish, and the sound of Y as in happy, lady. Do they sound similar? The later sound represents long I sound. जैसे जब जहां पे I है, ठीक है, I, जैसे set, fed, तो आप क्या बोलते हो, इसे set, ठीक है ना, set, fit, seat नहीं बोलते हो ना, seat is different. सीट तो फिर मेरी सीट, मेरे बैठने की जो जगह है, से बोलते हो ना कम, sit down. तो SIT sit, sit मतलब बैठना। When you say sit, fit, इसमें कौन से ई वाले साउंड, कौन से वाले ई का साउंड है, हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है, आ ई। एक छोटा ई होता है, एक बड़ा ई होता है। तो when you say sit, बैठो, fit, ओके, fish, fish नहीं बोलते हो ना, fish बोलते हो कि fish बोलते हो, we say fish, FISH, fish. So in these words the sound of E is small. जैसे छोटा ई होता है तो इसमें ये जो छोटा ई होता है उसका साउंड है, छोटे ई का साउंड। फिश, सेट, बिट, फिट, सब में छोटे ई का साउंड है। When we say lady, happy, इसमें you will see the sound of, लास्ट में इसमें भी ई का साउंड है, but that is a long E. Butterfly, happy, lady, pretty, लास्ट में जिन वर्ड्स में Y आ रहा है you will see that the sound is a long I. जैसे एक लंबा वाला साउंड है, ठीक है ना। happy, happy नहीं बोलते ना, we do not say happy, we say happy. I am very happy today. That lady is very pretty. That lady is very pretty. Butterfly, butterfly is very colorful. So इसमें आप देखोगे that it is the sound of long E. That is जो बड़ा वाला E होता है, ये जो बड़ा ई होता है, ठीक है ना। लेडी, हैप्पी, ठीक है। सो दिस इज द साउंड ऑफ लॉन्ग ई। ए में हमने पढ़ा एक ए का साउंड है, एक ए का साउंड है। जैसे हिंदी में एक और ए होता है ना, ए एंड ए, ठीक है ना। तो एक ए का साउंड होता है एंड आई का साउंड होता है। ई में भी स्मॉल ई एंड
लार्ज ई, कहीं पे हम छोटा ई वाला यूज करते हैं, कहीं पे बड़ा ई करते हैं. यू विल सी दैट इन आई ऑल्सो इट साउंड्स लाइक ई. सिट, छोटा ई. हैप्पी, लेडी, प्रिटी, बटरफ्लाई, सब में बड़े वाले ई का साउंड आ रहा है. लॉन्ग आई. ओके, सो दिस इज द difference in the sound of small e and big I. So I hope children this is clear to you all. I will stop here today. In my next class we will continue with the grammar exercise. Thank you children.